اگلے دن زوار نے کنزا کو پک کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج اس نے اپنے دادا کو ایک بڑی خوشخبری سنانی تھی۔ کنزا کو پہلے اس نے اس کے گھر چھوڑا، وجاہت نے اس کو پیچھے بیٹھنے کا بہت کہا، لیکن وہ جلدی کا بہانہ کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے دادا کو سرپرائز جو دینا تھا۔ بالاج سب لان میں کھڑے مالی کو ہدایات کر رہے تھے۔ زوار کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ وہ مالی کو ایک آخری ہدایت کر کے گاڑی کی طرف چل دیے۔ زوار گاڑی سے باہر آیا اور اپنے دادا کے گلے لگ گیا۔ بالاج بھی بڑی گرم جوشی سے ملے۔ ان کے گلے مل کر وہ الگ ہوا۔ بہت دنوں بعد اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا، ٹھنڈک مل گئی میرے دل کو۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا دادا، تجھے تو سب نے ہی بہت یاد کیا۔ بالاج اس کو لے کر اندر آیا، جہاں نمرا زوار کی ماں اس کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی اور اس کے گلے لگ گئی، پھر الگ ہو کر اس کا ماتھا چوما۔ یاد آ گئی ماں کی تمہیں؟ ماما آپ تو بھولتی نہیں ہیں۔ زوار نے پیار سے اپنی ماں کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ نمرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ وہ زوار آ گیا؟ وہ سبھی مل رہے تھے۔ ایک طرف سے زوار کے چچا شاویز آتے دکھائی دیے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی چاچو، زوار ان سے ملا۔ جلدی آ گئے؟ سب نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ مقصد پورا ہو گیا ہوگا نا؟ انہوں نے سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے خود سے ہی ایک کہکا لگایا۔ چاچی کہاں ہیں چاچا؟ زوار نے ماحول ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ میکے گئی ہوئی ہے، تم کہتے ہو تو ابھی بلا لیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، زوار نے منع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا بنواتی ہوں تمہارے لیے، نمرا نے زوار سے کہا۔ زوار سر ہلاتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس سب نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، نائلہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ نازش نے جتاتی نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اس کا شک صحیح تھا۔ آج تو یاد ہی نہیں کر رہی، لگتا ہے مغرور ہو گئی۔ نائلہ کے موبائل پر علی کی آواز آئی۔ مجھے کس بات کا غرور ہوگا، نائلہ نے جواب دیا، کیونکہ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے نے تمہیں پسند جو کر لیا ہے، علی نے اپنے محسوس چلبلے انداز میں کہا۔ نائلہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ہینڈسم اور تم؟ نائلہ نے پھر سے کہکا لگایا۔ میں ہینڈسم نہیں ہوں تو مجھے پسند کیوں کیا؟ وہ تو تم ویسے ہی بہت اچھے ہو۔ اچھا جی، ایک نہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہینڈسم بھی ہوں، علی نے فخریہ انداز میں کہا۔ دیکھتے ہیں، ویسے تم بہت یاد آ رہی ہو۔ کیوں؟ بس تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ دل کو قابو میں رکھو علی صاحب، ابھی تو قابو کر رہا ہوں لیکن کسی دن یہ قابو کھو بیٹھے گا، علی نے دوسری طرف دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اچھا۔ اس کے بعد وہ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ کھانے کے بعد زوار اپنے دادا کے کمرے میں آیا۔ کیا کر رہے ہیں دادا جان؟ کچھ نہیں، بس کچھ فائلز دیکھ رہا ہوں، تمہارے چچا کی نااہلی کی وجہ سے اس عمر میں بھی یہ کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ دادا جان آپ فکر نہ کریں، جلد یہ کام میں سنبھال لوں گا، آپ کو یہی خوشخبری تو دینے آیا تھا، ہمارا مقصد دور نہیں ہے۔ شاباش میرا بیٹا، بالاج نے فائلز سائڈ پر رکھی۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا نا تو مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی، بہت قابل تھا میرا منیر، پتہ نہیں اس بدبخت نور دین کو اس سے کیا دشمنی تھی۔ ان کی اس بات پر زوار کو نور دین کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، اب رات بہت ہو گئی، آرام کر لو، ٹھیک ہے دادا جان، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ زوار بالاج کے کمرے سے باہر نکلا، سامنے ہی نمرا کا کمرہ تھا، وہ ان کے کمرے میں چلا گیا۔ نمرا بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ زوار کو دیکھا تو مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ زوار ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نمرا آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگی۔ زوار بیٹا، ماں کی بات نہیں مانی نا تم نے؟ کیا منع کیا تھا نا میں نے تمہیں اس کام سے؟ بیٹا میں نہیں چاہتی تم ان بدلے کے چکروں میں پڑو۔ ماما آپ کہنا چاہتی ہیں میں بدلہ نہ لوں؟ اس شخص کی وجہ سے میں ساری زندگی یتیم رہا ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا اس میں اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس کے باپ نے میرے باپ کو مارا، اس کی اپنی موت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی بیٹی کو درد دوں گا تو اسے زیادہ تکلیف ہوگی، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ زوار نے اپنے خطرناک ارادے بتائے۔
बेटा तुम गलत राह पर हो। बाप का बदला बेटी से लेना सही बात नहीं है, गुनाह है बेटा। मामा प्लीज़। जवार ने इनकी गोद से सर उठाया और कुछ कहे बिना बाहर चला गया। अगले दिन जवार नूरदीन से मिलने इसके घर आया। नूरदीन को सामने देखकर वो बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। हानिया भी वहीं पर थी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नूरदीन ने बात शुरू की। जवार। नाम सुनकर नूरदीन ने चौंक कर इसको देखा। पूरा नाम? नूरदीन ने तस्दीक करने के लिए पूछा। बस जवार ही है। जवार से और कोई जवाब ना बन पड़ा। अच्छा, माँ बाप कब से बाहर हैं तुम्हारे? वो तो शुरू से ही बाहर होते हैं। मैं भी पहले वहीं था, लेकिन मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक़ था, इसीलिए इधर आ गया। जवार झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। इसका जवाब सुनकर नूरदीन को कुछ तसल्ली हुई। इसने सोचा कि एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसे में इस पर शक करना सही नहीं है। देखो बेटा, मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज़ है। अपनी बेटी की मर्ज़ी पर मैं तुम दोनों की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। हानिया अभी भी सर झुकाकर बैठी थी। आप फिक्र ही मत करें अंकल, मैं हानिया को बहुत खुश रखूंगा। शुक्रिया बेटा, बस मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते सादगी से निकाह हो जाए ताकि मैं हानिया को अपने घर ले जा सकूं। नूरदीन ने हानिया की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। हानिया इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जब मेरी बेटी को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्यों होगा? नूरदीन उठा और जवार को गले लगाया। जवार भी लब भींच कर इनके गले लग गया। एक हफ्ते तक जवार ने हानिया को कुछ शॉपिंग कराई। हानिया बहुत खुश थी, लेकिन इसे नहीं पता था इसकी खुशियों को आग लगने वाली है। ठीक एक हफ्ते बाद हानिया का और जवार का निकाह था। निकाह सेठ निज़ाम के घर ही हो रहा था, इसलिए वो भी मौजूद थे। घर को हल्का हल्का सजाया गया था और एक स्टेज बनाई गई थी जिस पर अब जवार और अली बैठे थे। सिर्फ नाइला और अली को ही बुलाया गया था, सब मर्द लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद नाइला हानिया को लेकर आती दिखाई दी। जवार ने नज़र उठाकर हानिया को देखा। हानिया ने आज गोल्डन कलर का फुल कढ़ाई वाला फ्रॉक पहना हुआ था। इस पर दुल्हनों वाला मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसको देखकर जवार की एक हार्ट बीट मिस हुई। वो तो नज़र हटाना ही भूल गया। अली के कोनी मारने पर वो होश में आया। बस कर यार, सब देख रहे हैं। जवार ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर खुद को नॉर्मल किया। अली स्टेज से उठा। नाइला ने हानिया को लाकर जवार के साथ बिठाया। वो और अली सामने जाकर बैठ गए। काजी साहब भी आ चुके थे। निकाह पढ़ाना शुरू किया गया। पहले जवार से पूछा गया और फिर हानिया से। निकाह के बाद सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। रुखसती का वक्त भी आ गया। हानिया अपने बाबा के गले रखकर रो दी। जवार को इसका रोना अच्छा न लगा, इसने मुंह फेर लिया। इसके बाद हानिया नाइला के गले लगी। अली ने इसके सर पर हाथ रखा। फिर सब लोग इसे कार में बिठा कर आए। जवार ने भी सबको अल्लाह हाफिज कहा और कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। एक नज़र हानिया को देखा और कार चला दी। हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया ने तजस्सुस से पूछा। मरी, जवार ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मरी क्यों? शादी के बाद डायरेक्ट हनीमून मनाने? जवार ने मुस्कुराकर हानिया को देखकर कहा। हानिया भी मुस्कुरा दी। जवार फिर से गाड़ी चलाने लगा। इसके चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। नाइला जैसे ही घर आई इसके फ़ोन पर अली की कॉल आने लगी। उसने कमरे में जाकर कॉल रिसीव की। आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं। अली की आवाज़ आई। तुमने जैसे बड़ी लिफ्ट दे दी मुझे। नाइला ने तड़क कर कहा। ओह, तो मोहतरमा मेरी लिफ्ट का वेट कर रही थी? नहीं जी। अच्छा नाइला, आज तो तुम्हें सही से देखा नहीं। मेरा तुम्हें देखने का फिर से दिल कर रहा है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं अली, पागल हो क्या? अभी कोई आ जाएगा। नाइला ने परेशानी से कहा। कोई नहीं आता, मैं आ रहा हूँ। नहीं अली। हेलो। दूसरी तरफ से कॉल बंद कर दी गई। नाइला तो परेशानी से वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अली का मैसेज आया। खिड़की खोलो अपने कमरे की। नाइला ने हैरानी से मैसेज पढ़ा और उठकर अपनी खिड़की खोली। अली नीचे सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर आया था और अब इसकी खिड़की से लटक रहा था। हाथ दो मुझे, अली ने अपना हाथ देते हुए कहा। नाइला ने इसका हाथ पकड़ा और इसको ऊपर खींच लिया। तुम पागल हो क्या अली? हाँ, तुम्हारे प्यार में। अली ने भी दो टोक जवाब दिए। किसी ने देख लिया होता तो? देखा तो नहीं ना। तुम कल का वेट नहीं कर सकते थे? इसकी बात पर अली मुस्कुरा दिया और इसके करीब आकर इसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। मैं तो तुम्हें देखे बिना कैसे रह जाता? नाइला झिप सी गई। नाजिश ने नाइला को कमरे में जाते देखा था। वो शादी का पूछने की गर्ज से नाइला के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे को खोला अगला मंजर देखकर इसकी आंखें फट गईं। नाजिश ने एक जोरदार चीख मारी। इसकी चीख सुनकर अरसलान और नाइला की माँ भी कमरे में आ गई। सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई। ये
देखो, मैं कहती थी ना ये लड़की कोई चंद चढ़ाएगी। लो देख लो नतीजा, नाजिश ने जल कर कहा। अरसलान की आंखों में खून उतर आया। वो खूंखार नजरों से अली की तरफ देखा और इसके कॉलर पकड़ लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं कोई गलत इरादे से नहीं आया था। अली ने सफाई पेश की। अरसलान ने इसकी बात पर और गुस्सा आया और इसका गला दबाने लगा। भाई प्लीज़ छोड़ दें इसको, नायला ने मज़ाहमत की। अली ने इसको छोड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ नायला को मारा। नायला ज़मीन पर जा गिरी। निकलो मेरे घर से। अरसलान इसको कॉलर से खींचता बाहर ले गया। नायला की माँ जो खाली हनी नज़रों से ये सब देख रही थी, अचानक से धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। नायला और नाजिश इसकी तरफ बढ़ी। मामा मामा नायला इनको बुलाने लगी। नाजिश अरसलान को बुलाने चली गई। जवार और हानिया अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था। जवार हानिया का हाथ पकड़कर इसको अंदर ले आया। हानिया घर का जायजा ले रही थी। इसमें 2 कमरे और एक किचन था। 2 कमरों के दरमियान गैलरी थी। हानिया को बहुत अजीब लगा कि जवार इसको इस घर में हनीमून के लिए लेकर आया है। जवार इसको साथ लेकर एक कमरे की तरफ चल दिया। जवार ने कमरे का दरवाज़ा खोला और हानिया को अंदर ले आया। अंदर का मंजर देखकर हानिया की आंखें फटी रह गईं। पूरे कमरे को लाल और काले रंग की थीम से सजाया गया था। बेड पर भी लाल गुलाब पत्तियां पड़ी थी। कैसा लगा? जवार ने हानिया को बेड पर बिठाते हुए पूछा और खुद इसके सामने बैठ गया। बेहतर, अच्छा है, बहुत खूबसूरत, हानिया ने कमरे को देखते हुए कहा। थैंक्स जवार। हानिया ने फिर जवार की तरफ देखा। खुश हो ना तुम? जवार ने अजीब सा सवाल किया। मैं बहुत खुश हूँ जवार, हानिया ने कदरे हैरत से इसे देखते हुए कहा। अब नहीं रहोगी? जवार ने बेड से उठते हुए कहा। क्या मतलब? हानिया को तजस्सुस हुआ। बड़ी जल्दी है मतलब जानने की तुम्हें? जवार ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? हानिया ने बेड से उठते हुए कहा। जवार की बातों से इसको डर लग रहा था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि सही कह रहा हूँ, जवार ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हानिया पीछे होती गई और दीवार से जा लगी। जवार, हानिया कुछ कहने ही लगी थी कि जवार ने इसके मुंह को पकड़कर जोर से इसके गाल पींज दिए। अफसोस करोगी तुम इसकी बेटी होने पर। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ लेकिन नहीं। जवार ने इसके मुंह को छोड़ा और इसके गाल पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हानिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा क्या कसूर है जवार? मैंने क्या किया है? हानिया रोते रोते बस इतना ही पूछ सकी। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बाप ने जो किया है ना, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जवार ने जोर से इसका गाल दबाकर छोड़ा। लेकिन मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। जानते नहीं हैं, जवार ने कहा। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं सारी उम्र यतीम रहा। जवार ने दांत दबाए। अब मैं तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हारे बाप से बदला लूंगा। जवार प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, हानिया ने रोते हुए कहा। जवार के चेहरे पर एक शातराना मुस्कुराहट आई। तुम अब देखो मिस हानिया, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। हानिया ने रोना शुरू कर दिया। चलो हानिया, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, इसको अच्छे से मनाते हैं। जवार एक कड़वी मुस्कुराहट लेकर इसके करीब हुआ। दूर रहो मुझसे। हानिया ने इसको खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जवार ने ज़बरदस्ती इसको पकड़कर बेड पर गिराया और ख़ुद इस पर झुका। जो भी है, मैं तुम्हारा तो हूँ ना। जवार प्लीज़, हानिया ने मज़ाहमत की। हानिया का इस वक्त दिल कर रहा था कि खुद को मार दे। इससे पहले कि हानिया कुछ और बोलती, जवार ने इसके हाथों को जकड़ा और इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हानिया के आंसू जारी हो गए। हानिया के आंसू जवार के चेहरे पर लगे। जवार इसको छोड़कर उठा। हानिया को खूनख्वार नज़रों से देखा और कमरे से बाहर चला गया। हानिया ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रो दी। वो तो मैं भी नहीं जानती थी इसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। सब लोग अस्पताल के रूम के बाहर बैठे थे। नायला मुसलसल रो रही थी। नाजिश बार बार इसकी तरफ एक तंजिया निगाह डाल लेती। सलान तो इसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद रूम से डॉक्टर बाहर आए। सब इनकी तरफ लपके। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी मामा? नायला ने पूछा। डॉक्टर ने अफसोस से सर नीचे किया और कहा, सॉरी, शी इज़ नो मोर। नायला को लगा आसमान इस पर फट पड़ा है। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरसलान की आंखों में भी आंसू थे। नायला को अपना होश भी ना रहा। इसको नहीं पता चला कौन इसे घर लेकर आया। इसे जब होश आया तो इसने अपनी माँ की मैयत को अपने सामने पाया।
मामा। नाइला चीखती हुई इनको उठाने लगी। नाजिश भी लोगों का ख्याल करके इसको संभालने लगी। मामा प्लीज़ वापस आ जाएं, अल्लाह मेरी मामा को वापस कर दे प्लीज़, वो दीवाना वार रोए जा रही थी। नाइला बस कर दो, संभालो खुद को। नाजिश ने आसपास के लोगों की फ़िक्र करते हुए अच्छा बनने की कोशिश की। नाइला दाढ़े मार मार कर रोने लगी। इसकी हालत देखकर साथ बैठी और औरतों के आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर के बाद 4 मर्द जनाजा उठाने के लिए आए। नाइला मैयत से लिपट गई। मैं नहीं जाने दूंगी आपको मामा, ये चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। नाइला बच्चों की तरह रोते रोते दुहाइयाँ दे रही थी। नाजिश ने इसको मैयत से अलग किया। नाइला को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। हानिया रोते रोते सो गई थी। जब इसकी आंख खुली तो वो इसी बेड पर पड़ी थी। इसे अपना सर बहुत भारी महसूस हुआ। भारी सर के साथ वो उठी। रात वाली बात याद करके वो फिर से रो दी। कुछ देर रोने के बाद वो खुद को संभालती हुई उठी। अलमारी खोली तो इसमें इसके कपड़े भी मौजूद थे। इसने इनमें से एक जोड़ा उठाया और वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आई तो जवार कमरे में ही बैठा था। नहा लिया मेरी जान ने, जवार ने कहा। हानिया अजीब सी नज़रों से इसको देखने लगी। क्या था वो शख्स? कम अज़ कम इसकी समझ से तो बाहर था। जवार देखो, हानिया ने इसके पास बैठते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। ना ना, मुझे तुम्हारे करीब आने का हक है, तुम्हें नहीं है। जवार ने खूनख्वार आंखों से इसे देखते हुए कहा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। जवार, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बार बार इसकी वजह बताता फिरूं? जवार ने बेड से उठते हुए कहा और इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हानिया का हाथ पकड़कर खींचकर इसे बेड उठाया। हानिया इसके सीने से जा लगी। जवार ने एक हाथ इसकी कमर में डालकर ज़ोर से पकड़ा। मुझे दर्द हो रहा है जवार। चुप, बिल्कुल चुप, जवार ने इसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अकेले अकेले तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ना तुम्हारे बाबा को भी इसमें शामिल किया जाए? जवार ने एक हाथ से मोबाइल जेब से निकाला। नहीं जवार प्लीज़, हानिया ने मना करने की कोशिश की। कहा ना चुप। जवार ने खा जाने वाली नज़रों से इसको देखा। हानिया चुप हो गई। जवार ने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक की गई। हेलो, जवार ने कहा। जी कौन? नूरदीन ने पूछा। जवार मुनीर, जवार ने फाहराना मुस्कुराहट के साथ कहा। दूसरी तरफ नूरदीन सुनकर बिल्कुल साकित हो गया। क, क, कौन? जवार मुनीर, इतनी जल्दी भूल गए सुसर जी? नूरदीन का शक यकीन में बदल गया। कहाँ है मेरी बेटी? देखो इसको कुछ मत कहना, इसका कोई कसूर नहीं है। देखो तो कैसे तड़प रहे हो, ऐसे ही तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। अभी तो बस शुरुआत है। कहाँ लेकर गए हो मेरी बेटी को? नूरदीन की परेशानी से भरी आवाज़ फ़ोन में से उभरी। बाबा, हानिया कुछ बोलने ही लगी थी कि जवार ने इसको आंख दिखाकर चुप करा दिया। ये तुम्हें बता दिया कि हम कहाँ हैं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी तो तुम यही इंजॉय करो। ये कहकर जवार ने काट दी। हानिया फिर से रोने लगी। नहीं नहीं मेरी जान, रोना नहीं है, जवार ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। अभी तो तुम्हारे बाप को सिर्फ यही पता है कि तुम मेरे साथ हो और वो इतना तड़प रहा है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब सोचो इसका क्या हाल होगा। जवार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं नहीं जवार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हानिया ने रोना शुरू कर दिया। तो फिर रोने लग गई। जवार ने इसको अपने और करीब किया और इसके लबों पर झुक गया। हानिया को छुड़वाती रही लेकिन इसकी पकड़ मजबूत थी। थोड़ी देर के बाद वो अलग हुआ। अगली दफ़ा तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो इससे बड़ी सज़ा मिलेगी। जवार इससे कहता कमरे से बाहर चला गया। हानिया को समझ ना आया वो क्या करे। वो बेड पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। नाइला को जब होश आया तो इसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो उठी। अपनी माँ के जाने का गम सोचकर वो फिर से रो दी। देर के बाद वो उठी, वॉशरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो इसको बहुत भूख महसूस हुई। वो कुछ खाने की घर से बाहर गई। अभी वो किचन में जा रही थी कि इसको नाजिश की आवाज़ आई। इधर आओ बदजात। नाजिश के इस तरह कहने पर नाइला का दिल कट कर रह गया। वो मरे मरे कदमों से इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अरसलान भी वहीं बैठा था। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखा जैसे बात शुरू करवाने का इशारा हो। तुम अपने कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी? अरसलान ने नाइला की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन भाई,
लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी एक गलती की सज़ा मैं अपनी माँ को खोकर भुगत चुका हूँ। अब मैं किसी किस्म की बदनामी नहीं सह सकता। ले जाओ इसको यहाँ से नाजिश, और बंद कर दो इसको कमरे में। अरसलान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो तो नाजिश की ज़ुबान ही बोल रहा था। नाजिश ने इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई इसको कमरे में की तरफ लेकर जाने लगी। नहीं भाभी, प्लीज़ छोड़ दें भाई, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। नाइला हाथ छुड़वाते हुए रोए जा रही थी, लेकिन इन दोनों पर इसका कोई असर ना हुआ। नाजिश ने इसको कमरे में लाकर बेड पर पटका। अब यहाँ से निकलने का सोचना भी मत, ये कहती नाजिश बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। भाभी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। नाइला रोते रोते वहीं दरवाज़े के पास ही बैठ गई थी। किसने सोचा था कि इतनी हंसती खेलती दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आना है। अली इस दिन से खोया खोया फिर रहा था। ज़किया और ज़िया साहब ने ये बात बहुत नोट की थी। अली अपने रूम में बैठा किसी सोच में गुम था कि इसके अम्मी बाबा कमरे में आए। अली इनको देखकर उठा। बैठो बेटा बैठो। ज़िया साहब ने इसको बैठने का कहा। वो दोनों खुद भी इसके साथ बैठ गए। क्या बात है बेटा, तुम आजकल बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। ज़किया बेगम ने बात शुरू की। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, अली ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। देखो ज़किया बेगम, अब हमारा बेटा हमसे बातें छुपाने लगा है। ज़िया साहब ने इससे बात उगलवाने के लिए कहा। नहीं बाबा, तो फिर बताओ बेटा क्या बात है, हमसे मत छुपाओ, ज़किया बेगम ने प्यार से कहा। अली ने कर्ब से इन दोनों की तरफ देखा और सारी बात बता दी। इसकी बात सुनने के बाद ज़किया और ज़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अम्मी आप प्लीज़ एक दफ़ा नाइला का रिश्ता लेकर जाएं, अली ने अल्तजाइया नज़रों से माँ की तरफ देखा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खातिर एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाएंगे, ज़किया बेगम ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। अली ने प्यार से इनकी तरफ देखा। जवार गैलरी में सोफ़े पर बैठा था कि इसके मोबाइल पर बलाज की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो बेटा, काम तो शुरू कर दिया होगा। जी दादा जान, बस बेटा अब जल्दी से इस काम को अंजाम तक पहुँचाओ, मैं इसी महीने में तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। लेकिन दादा जान, जवार ने परेशान होते हुए कहा।